الرحمن الرحیم ویورس، آج میں بات کر رہا ہوں چائنا Z8 کے بارے میں، اس ڈیٹیل میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات یہ بتاؤں کہ یہ سب سے پہلے جو ہے اکتوبر 2022 میں ایک آئی تھنک یورپ کی کوئی ایک ویب سائٹ تھی، اس پر یہ آیا تھا کہ پاکستان اس میں انٹرسٹ لینا چاہ رہا ہے، لیکن پاکستان کو پسند نہیں آتا کیونکہ اس کا ابتدائی ویریئنٹ جو تھا وہ Z10 ہے، تو وہ پسند نہیں آیا تھا پاکستان کو۔ لیکن چائنا جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے ایک وہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹا، لیکن مجھے ڈاؤٹ ہے اس پہ۔ وہ کہہ رہے جی اس سے پہلے جو یہ Z10M ہے، یہ چائنا پہلے بنا بیٹھا تھا، لیکن خیر میں اس چیز کو نہیں مانتا، کیونکہ 2022 میں بات ہو رہی تھی تو پھر یہ کیسے پہلے بن گیا؟ صحیح میں تو Z10 تھا، لیکن پہلے میں اس کی موٹی موٹی کچھ چیزوں کی بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس تاریخ ایک اور بولتا ہوں، اس میں یہ بھی مسئلہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات میری سڑک میں بھی بتا دوں، کچھ فیک نیوز اس کے بارے میں پہلے وہ میں بات کر جاتا ہوں کہ یہ جی پاکستان میں اس کی ڈلیوری اسٹارٹ ہو گئی، یہ جھوٹ ہے۔ اسی منتھ اور یہ کہتے ہیں یا اس سال تک جو ہے اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ پہلی بات 2026 میں جا کے پورا ہوگا، یہ میں اپنی پریڈکشن کی ایک ویڈیو میں نے چھوٹی سی بنائی ہے 2 منٹ کی، اس میں جا کے سن سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہا جی 15 جولائی سے پہلے پہلے یہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے، یہ بھی جھوٹ ہے، 15 جولائی کے بعد یہ آنا سٹارٹ ہوں گے، یہ بلکہ 17 جولائی تک کریں۔ اور دوسری یہ چیز کہ اس میں جو ہے تقریباً اب میں اس کے خیال مین بات کر رہا تھا، میں نے اپاچی ایک ہیلی کاپٹر ہے، بوئنگ کا ہے، بڑا فیمس ہے، پاکستان بھی چاہ رہا تھا وہ خریدے، لیکن کچھ ریزن تھے، جیسے آپ کو پتا USA لگاتا ہے رجسٹریشن لگاتا ہے، جیسے انہوں نے جب پاکستان جو ہے جب یہاں سے ٹرکی ہیلی کاپٹر کے پاس گیا T129، وہ ہیلی کاپٹر اچھا تھا، یورپین ٹیکنالوجی تھی، ساری چیزیں اچھی تھی اس کے اندر، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بھی جو ہے میں طرح ہوا کہ اس میں اس کے انجن کا ایشو آ رہا تھا، کیونکہ جو وہ لگا کے دے رہا تھا وہ ٹائم تھا اس میں زیادہ تھا۔ تو اب ظاہر پاکستان کی جنگ ہوئی تو اب کو پاکستان کو انیشیل بیس پہ لینا چاہیے، اور کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ میں ویڈیو اپنے چینل پہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان ہیلی کاپٹر لینا چاہیے بہت ضروری، کیوں اس کے بہت ساری ریزن ہے جو ابھی تک کوئی چینل بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہی کہوں گا کہ پاکستان کو اپنی جو ہے کچھ ٹیکٹیکل ویپن کو لے جانے کے لیے ادھر سے ادھر یہ بڑے ضروری ہے، تیز ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر اس کو روڈ کی تو ضرورت ہوتی نہیں، ٹھیک ہے، باہر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بلکہ میں تو کہوں گا اس کے لیے اسپیشل پاکستان کو ہیلی کاپٹر اسپیشل مشن کے لیے جن کی اسپیڈ جو ہے کم از کم جو ان کی اسپیڈ 500 اسپیڈ ہوتی ہے، 450 500 وہ لینی چاہیے، کیونکہ ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے، اور جیسے کہ اپنے ایک ویڈیو آج ایک لوگ سنو کے فاجت میں کہتا ہے 30 سیکنڈ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو سیکنڈوں کے گیم آئی تھی۔ خیر ہم واپس آتے ہیں، اس کے بارے میں بات کروں گا یہاں پر۔ تو اب امپروو کر کے دیے یہ بھی وہ میں ان کی ابھی میں کریکٹرس کی تھی سارے بات جو پبلک پر اویلیبل ہے، اور یہ ساری دنیا کی چیز میں یہاں پر ایک پتھر بات کرنا چاہوں گا کہ چاہے USA ہو یا رشیا ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہ جب بھی کوئی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا ویپن دیتا ہے، وہ اپنی اوریجنل جو اس کی وہ چیز ہوتی ہے اس کے مطابق وہ نہیں دیتا، پہلی چیز۔ ہم یہ بتائیں ہم انڈیا کہیں گے نہیں جی چائنا کو کیسے دے رہا ہے، تو میں اس کی مثال پھر ایک مثال سامنے دوں گا کہ J10 تھی ریسنٹلی بھی جو فائٹ ہوئی پاکستان وہاں ان کی، اس میں ہم نے دیکھ لیا نہ صرف میزل بلکہ پلس جو ہے وہ جیٹ بھی کون سا پاکستان کو ملا وہ اب سب کے سامنے ہے۔ اب وہ میں یہاں پر انڈین پھر ایک بات کہیں گے کہ نہیں جی وہ چائنا نے J20 تو نہیں دیا، چائنا نے جو ہے اپنا جو ہے وہ ہائی ٹیک جیٹ J8 پہلے وہ تھا، پاکستان کو جو ضرورت تھی جو چیزیں تھوڑی تھی، لیکن وہ کہتا ہوں وہ پنجابی کی مثال کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں کہ تھوڑی چیز تھی لیکن اچھی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں دوسری یہاں پر میں ایک اور دلیل دینا چاہوں گا، وہ دلیل میری یہ ہے کہ چائنا جتنی بھی چیزیں شو آف کرتا ہے نیٹ پر، وہ ہمیشہ اس کی پرفارمنس سے کم شو کرتا، اوور نہیں کرتا۔ جو انڈین ایک بنا رکھتا ہے، انڈینس کہتے ہیں، یوٹیوبرس کہتے تھے کہ نہیں جی ہم اوور لیپنگ ہے جی، بہت اوور، وہ سارا آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ اوور لیپنگ نہیں، بلکہ مشرف نے دفعہ کہا تھا کہ بڑی چھپی یہ قوم ہے اور بڑی ساری چیزیں اوپن نہیں کرتی، وہ چائنا اپنی ملٹری کے بارے میں بالکل نہیں بات کرتا ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں بات کروں گا جو میں نے ابھی چیز چیک کی ہے، تو ایک چیز بڑی مزدار وہ یہ کہ خیر ریڈار کے بارے میں تک انفارمیشن اس کی نہیں ملی، ٹھیک ہے، لیکن چلیں میں شاید ویڈیو کے اینڈ میں بتا دوں آپ کو، وہ بھی 1300 واٹ اس کی پاور ہے، اور جو پاچی ہیلی کاپٹر اس کی 1500 ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مجھے پتا ہے وہ کہیں گے جی انڈین کہیں گے 20 کا فرق ہے جی، 20 کا فرق ہے، ٹھیک ہے، تو 20 کا فرق نہیں ہے، پہلی بات ہے یہ غالباً آیت ہے 15% کا فرق آیت ہے۔ اب کہیں گے نہیں جی ڈبل ڈیجٹس کا فرق ہے 15% انجن پرفارمنس کا، چلیں میں ان کی بات یہاں پر ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔ اب میں آگے چلوں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں ان کی جو رینج آ رہی ہے 476 کلومیٹر اور رینج جو ہے 800 کلومیٹر۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیا مزے کی بات آ گئی، سروس سیلنگ کے ساتھ سب سیم ہے، ٹھیک ہے، اسپیڈ بھی تقریباً اتنی ہے 273 تقریباً بنتی ہے، اور اس کی بھی تقریباً یہی بنتی ہے، اور رینج میں نہیں کرا، یہ گوگل پہ جا کے چیک کر لیجیے، وہاں پر کروں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد اچھا یہاں پر چلیں
अब वो मुझे कहेगा 15 जितना फ़र्क चला, इन दोनों को मैं बराबर बराबर नंबर दे देता हूँ। एक दलील मैं आखिर में जाके दूंगा जो इंडियंस को शायद एक्सेप्ट ना हो, लेकिन आखिर में जाकर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब मैं इनकी डिटेल में आया कि थोड़ी सी वेपन सारे की बात नहीं करूँगा, तो यहाँ पर मैंने देखा कि अभी कुछ मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ इस टाइम उर्दू डिफेंस में जो उसकी डिटेल में इतनी ज़्यादा बात करूँ। तक मैंने नेट पर चेक किया, मुझे किसी से भी कोई इतनी डिटेल वीडियो नहीं मिली। अच्छा, उसमें अगर जहाँ जब मैं स्मॉल क्रूज़ में जाता हूँ तो मज़े की बात, तो स्मॉल क्रूज़ नज़र में जो है वो मुझे इसके तो मिलते हैं, लेकिन मुझे उस तरफ से अपाची पर नहीं मिलते। शायद अब अमेरिकन ने इंटीग्रेट कर लिया, लेकिन जो पैकेज इंडिया को मिल रहा है वो उसमें है ही नहीं। और इंडिया को पहले भी रफाल जिस तरह जिस पैकेज में मिला वो सबके सामने मिसाल है। दलील में आखिर में वह भी दे दी, वो सबके सामने मिसाल है। लेकिन मैं अभी चलिए गूगल की बात करूँगा, तो उसमें जो है वो तकरीबन ये करें 230 किलोमीटर है, ठीक है। आ, हाँ, तकरीबन मैं गलती की से 23 किलोमीटर है, मैं गलत कर रहा हूँ शायद। स्पीड, हाँ सॉरी, गलत होगा, सॉरी। स्पीड 230 किलोमीटर है, रेंज 70 किलोमीटर है, ठीक है। एक बहुत अच्छी स्पीड है, ठीक है। यानी कि आप अपने एक किस्म की आप बफर जोन भी खैर इतना बड़ा नहीं होता, वो भी छोटा शहर इस बात वजह से होता है। तो यानी कि 100 किलोमीटर पीछे रख के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो मैं पॉइंट को जो वो उस मुझे नहीं मिले। स्मॉल है, यूएवी है, सारी दुनिया जानती है। खैर इंटीग्रेट करना मेरे ख्याल इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन अगर साथ मिले तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो वो मुझे नज़र नहीं आया, ठीक है। उनके पास एक बड़ा यूएवी है, वो जिसका नाम खैर लिखो RQ7BV2 ब्लॉक टेक्टिकल। ये तकरीबन इसकी जो स्पीड है 125 और एंड्योरेंस 9 है, लेकिन ये मैं जब चेक किया तो ये तकरीबन 30-40 वेट उठा देंगे, ये हैवी है। जबकि ये जो स्मॉल है, जो SW6 है, ये सिर्फ 5 केजी पे है क्या, ठीक है। यानी कि ईजिली ये जो है वो अपना काम इंडोरेंस यानी कि 100 किलोमीटर स्पीड कर लें, ठीक है। 1 घंटा उड़ा तो ज़ाहिर सिंपल सी बात है, उस चीज़ को इतनी बन सकती है जैसे, क्योंकि उसकी मैं मिसाल यहाँ पर दूँगा। जब ये आप देखें, जब ऊपर है, ये 8.5 किलो का वारड लेके जा रहे हैं, स्मॉल क्रूज़ है, तो वो 70 किलोमीटर पर जा रहा है, तो ये तो फिर 100 तो बनते ही बनते हैं, इतना होता है। यूवी कितना होता है, ठीक है, ये जो स्मॉल होते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं अगर स्मॉल मिज़ल की बात करूँ, तो यहाँ पर अपाची को एक एज मैं कहूँगा हासिल है, वो ये हासिल है। खैर ये वो ST10 भी यूज़ कर सकता है। BVR मिज़ाइल की बात करूँगा, जिसमें वो F92E M92 स्टिंगर मिज़ाइल, और इसके बाद जो है वो साइड फाइंडर मैं कहूँगा वो यूज़ करता है, ठीक है। और अच्छा, मज़े की बात, इनकी रेंज भी 10 किलोमीटर है, रेंज में कोई फ़र्क नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से जो है चाइना BAG-300 और T90 है, ठीक है, 6 से 10 किलोमीटर इतना कर सकता है, ठीक है। और बड़ी अच्छी उनके मुकाबले टेक्नोलॉजी दी है, जिनका यूएवी क्रूज़ को भी हिट कर सकता है, वो भी कर सकते होंगे। अच्छा, मोटी-मोटी मैं बात करूँगा, इसमें ब्रीकी में जाऊँगा। अच्छा, दूसरी तरफ से जो है वो जो यूज़ कर रहा है चाइना, वो HD-10 और FT-10 वगैरह एंटी रेडिएशन मतलब यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात, वो यूज़ कर रहे हैं जो AGN F114 FM एंटी रेडिएशन मिसाइल, उसकी भी तकरीबन दोनों की 10-11 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये कोई इतना ज़्यादा बाउंड नहीं था हमेशा। जैसे मैं फिर वो बोलूँगा, फिर इंडिया यहाँ पे शायद होना चाहेंगे कि M20D में और PL-15 में फ़र्क सिर्फ ये था कि उनमें कोई 5-10 किलोमीटर का फ़र्क नहीं था, उसमें 40-50 किलोमीटर का फ़र्क था, बल्कि यहाँ पर कहूँगा तकरीबन डबल फ़र्क था। ये 100-120 था, वो 200 था, मोटी-मोटी बात थी। तो खैर, अच्छा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा इसलिए एक यूज़ करते हैं, स्पाइक एनालिसिस मेथड यूज़ करते हैं, रफ़ाल कंपनी का बना हुआ है, ठीक है। और ये बड़ा है, 25 किलोमीटर तक जाता है, ये टू ग्राउंड वेपन है। इसमें ये भी अच्छा, इसमें यही दे रहे हैं, ठीक है। मज़े की बात 45 केजी का, मैंने खैर उसके वेट शेट में नहीं किया, लेकिन इसकी जो मुझे मालूम है मैं उसकी बात करूँगा। दूसरा गाइडेड बॉम्ब, अनगाइडेड बॉम्ब वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप पॉइंट देना चाहें, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप खुद यूज़ कर लें, मैंने अभी मज़ीद चलो मैं नहीं किया कि यहाँ पर देखें, चाइना जो है सबसे पहले वो इतनी आपके सामने इसके बाद आ चुकी है, इतनी वैरायटी आ चुकी है कि जिसमें आप J-70 की मिसाल, J-10C की मिसाल, किसी भी मिसाइल में देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर हो, कोई भी, ठीक है। तो मैं आज एक बात कहूँगा, ठीक है, पाकिस्तान को अपाची वहाँ से मिले, आज पाकिस्तान को चाइना से मिल गए, ठीक है। तो आप ज़रा इसमें देखें, अगर चले 15 इसको छोड़ दें, तो ऊपर जो है फिर भी करते हैं, तो 2-3 ऐसे पॉइंट बनते चलें। मैं कहता एज ही नहीं, चलें आप यहाँ पर भी छोड़ दें, दफ़ा करें। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, मैं आपको कहता हूँ, आज लास्ट में 2 लिख दूँगा। चाइना अपना इस जंग में साबित हुआ, और खुद इंडिया ने काफ़ी जुर्माना किया, अपना फुली हाईटेक, वो खुद कहते हैं जी हमारे चाइना से हुआ, ठीक है। तो अगर ज़्यादा चाइना अपना एक बेस्ट वेपन देगा, ठीक है, मेरे कहने का मतलब कि कोई भी अपना वेपन देगा वो फुली पैकेज से देगा। एक दलील, इंडिया के साथ चाहे रशिया से वेपन ले, चाहे अमेरिका से ले, सारी दुनिया जानती है कि क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, रफ़ाल जेट सारी दुनिया जानती है, अच्छा है,
मिराज 2000 पाकिस्तान उससे पुराने यूज़ कर रहा है, पाकिस्तान ने यूज़ करके दिखाया कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडिया ने क्या हशर करा है आपके सामने, ठीक है। और तीसरी और आखिरी दलील, अपाची हेलीकॉप्टर्स बेचारों की, जो मैं एक अपने ब्लॉग में मैंने कहा था कि मुझे तेजा पे और अपाची पे दोनों पे तरस बेचारे पे आता था, ठीक है। और तीसरा SU-30 जिसको उन्होंने वाइट एलिफेंट बना दी, ठीक है, बेचारे को मुझे तरस आता है। इन तीनों फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों के तीनों फ्लाइंग एसेट्स हैं, मुझे तीनों पर दुख लगता है। तो मैं ऐसा इतना कहूँगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी डिटेलिंग वीडियो थी, मैं कहा चलें मैं मज़ीद शामिल करूँ इसमें, अभी तक तो मुझे और नहीं मिला, लेकिन मैं मज़ीद अगर इसमें कोई अच्छी चीज़ मुझे मिली, बहुत डिटेल में वीडियो बना दी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा दोनों में फ़र्क नहीं है। उसके अगर मैं फिर कहूँगा मैं चले एज ना भी दें, चलो वो दोनों बराबर के तकरीबन। और बड़ी खुशी की बात है, ये पाकिस्तान को पहले इतने अच्छे ऑफ़र नहीं थे, अब ये बहुत अच्छी चीज़ों के ऑफ़र पाकिस्तान को हो रहे हैं। इनमें HMD जो है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी, वो भी पाकिस्तान को मिल रहा है। इसके अलावा जो है एवियोनिक्स उसमें बड़े अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। बुलेट वो मिल रही है बचने के लिए, ठीक है। फिर उसके इंफ्रारेड मिल रहे हैं कि ताकि वो उसमें ना आए, ठीक है। क्या कहते हैं, काउंटर मैयर्स मिल रहे हैं, मॉज मिल रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअल अप्रोचिंग वार्निंग सिस्टम होता है, मॉज होते हैं, MAW कहते हैं उनको, ठीक है। MAWS वो फाइटर जेट्स पर भी लगते हैं, वो भी इसको मिल रहा है, ये कि फुली पैकेज एक जेट मिल रहा है। और रिसेंटली मैं तो ये भी यही ब्लॉग में पढ़ा था कि ना सिर्फ इसकी ओवरहालिंग भी पाकिस्तान में होगी, बाकायदा वो भी इसको देंगे। तो इतनी चीज़ों के बाद पाकिस्तान इतने अच्छे पैकेज से मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीज़ है। सिर्फ पाकिस्तान से मैं इतना कहता पाकिस्तान सिर्फ चाइना से क्यों नहीं ले रहा था, पाकिस्तान असल में इसलिए चाइना से लेना ही चाह रहा था कि पाकिस्तान से वो एक सिस्टम रखना चाहता था कि टर्की से भी एलॉय बनी रही, इससे चाइना से भी बनी रही, ताकि एक ही कंट्री से सारे वेपन ना उठाए जाए, क्योंकि वो भी टेक्निकली इशू हो गए थे, ठीक है। तो खैर ये अल्लाह की तरफ से मैं कहता हूँ सब लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तो अभी तो मैं ऐसी डिटेल वीडियो बनाई, मज़े अगर मुझे कोई और बनी, कोई और चीज़ें मिली, जैसे मैं कहा इसमें बहुत सारी चीज़ें भी मिस हैं, जैसे हार्ड पॉइंट मैं भी उसने निकाला, लेकिन मैं जितना भी तो आपके सामने देखने निकला हूँ, मैं चलें अगर चैलेंजेस नहीं भी मानता कि एज नहीं है, चलो हमारे तो एज नहीं, लेकिन अभी 3 दलीलें मैं आपको दी है वो आपके सामने, ठीक है। लेकिन अगर एज नहीं है तो इस टाइम Z10 कम भी नहीं है। और मैं आपको एक और मज़ीद बताऊँ, ये चाइना का टॉप हेलीकॉप्टर, ये भी मैं एक बात बता दूँ, ठीक है। कुछ मेरे पाकिस्तानी हो सकता है वो ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन ये हकीकत है। मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं गया, लेकिन चाइना का जो बेस्ट हेलीकॉप्टर वो नहीं है, ठीक है। जैसे कि गो उन्होंने अपना जो है वो पाकिस्तान J10C दिया था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमारे भूल गए थे कि उससे ऊपर जो है 2 ऑलरेडी जो फाइटर जेट है वो चाइना के पास है, जिनमें मैं एक बात करूँगा J20 की बात करूँगा, ठीक है। और दूसरा जो उसमें मेरा मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं अक्सर ग्राउलर कह के बुलाता हूँ उसको, दूसरा वो ट्विन इंजन ग्राउलर है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा जिसे आप जिसको कभी वो J15 कहते हैं, ठीक है। तो अब उसका मेरे ज़हन में सही उसका नाम नहीं आ रहा, 2 दुनिया में 2 ही, ठीक है। तो वो 2 बहुत अच्छे हैं, ट्विन इंजन जेट है, बहुत ज़बरदस्त जेट है, ठीक है। तो वो G10 से भी उनका है, बैकबोन है बहुत बड़ी तादाद में, इतना बुरा नहीं है। लेकिन मैं ये मिसाल इसलिए मैंने आपको दी है कि इससे ऊपर हो सकता है चाइना के पास, ज़्यादातर इससे अच्छा कोई हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर अगर चाइना के पास होगा तो ज़्यादातर 1 या 2 होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्योंकि ये इतना बड़ा एसेट नहीं होता, काम ज़रूर आता है जंग में, नो डाउट, लेकिन मेन एसेट जो होता है वो हमेशा मिसाइल्स होते हैं या फाइटर जेट्स होते हैं। इनका मैं कहूँगा इनका आप काम तरीन समझे जैसे टैंक के साथ होता है। खैर लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरी तरफ से कुछ चीज़ें जो मैं डिस्क्रिप्शन बयान कर दूँ, अगर आप प्लीज़ इसमें कोई एडिंग या सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा।